उसी स्टार्ट। जय सच्चिदानंद। कंठे विराजो है दादा, उछलाओ सबरी भाषा। कंठे विराजो है दादा, उछलाओ सबरी भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता, सुधामनवाणी भाषा। सन्मुखे सरस्वती माता, सुधरावो मनवानी भाषा। कंठे विराजो हि दादा, उछलाओ सबरी भाषा। कंठे विराजो है दादा, उछलाओ सबरी भाषा। काढ़े जो अनुभवनो तारे, तोरे मन को काटा। काढ़ जो अनुभवनो तारे, तोरे मन को એને ખાટા। પોતે પોતાના જોવા, અવબણિયા માનીને ખાજા। પોતે પોતાના જોવા, અવબણિયા માનીને ખાજા। कंठे विराजो हि दादा, उछलाओ सबरी भाषा। कंठे विराजो हि दादा, उछलाओ सबरी भाषा। सत्तानी भाषा दुरुपयोगे, वपराता उगाड़े कांटा। सत्तानी भाषा दुरुपयोगी, वपराता उगाड़े कांटा। निर्दोषी वाणी मीठा, संस्कारे मातृ शाता। निर्दोषी वाणी मीठा, संस्कारे माधुर्य शाता। कंठे विराजो हे दादा, उछलाओ सबरी भाषा। कंठे विराजो हे दादा, उछलाओ सबरी भाषा। चारित्र बलनी वियोड़, संचारे निकले वाचा। चारित्र बलनी वियोड़, संचारे निकले वाचा। विचार उच्चारणी आचारे, वर्तावो परमात्र शास्त्र। विचार उच्चारणे आचारे, वर्तावो परमात्र शास्त्र। कंठे विराजो हि दादा, उछलाओ सबरी भाषा। कंठे विराजो हि दादा, उछलाओ सबरी भाषा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके, आप तो अकेले ओके, यू कैन डू now कलमों one after another। कोई आएगा तो देखेगा।
Okay, જય charisma number 1. જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પર અહમ ના દુબાય કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માને કિંચિત માત્ર પર અહમ ના દુબે એવી સાદવાદ વાણી, સાદવાદ વર્તન અને સાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Kushi number 2. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબાય કે દુબોવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Monica number 3. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો ઉપદેશક, સાધુ, साध्वी के आचार्य अवनवाद, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. Charisma. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો ચેત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ના કિયા જાય, ના કરવાઈ જાય કે કર્તા કે પ્રતિ ના અનુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Kushi. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલી જાય, ન બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. Monica. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી એ પુરુષ ગુજરાતી mix થાય છે ને? ગમે તે લિંગ ધારી હોય તો એ તેના ગુજરાતી. કિંચિત માત્ર પર વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Karishma. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તમાન પણ ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Kushi. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામેનાલો કોઈનો એક માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ના કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. કોણ બોલે છે? Charisma. Charisma. Number 9 બોલો. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, મને જગત કલ્યાણ કરવું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય Okay. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી. હાજી. ફ્રી મંત્ર બોલાય, બાળકો ફોલો કરેંગે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વસાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોકે સર્વસાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुखारो, सव पावकपणासनो, સર્વપાવકનાશનો, मंगलाणं च संवेशीं, મંગલાણં સર્વેષાં, परमं भवै मंगलम्. પરમં મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.
जय सच्चिदानंद ओके चिनाई जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया कायोग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अवकाश से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समय में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। पिताक्षी बा मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, सभी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दीजिए। सत्य दक्ष जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, on हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, भी हैं कच्चे, सीधी है सच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे जय ओके जय सच्ची। ओके हेल्थ हिंदी चिनाई दादा सैक्रिफिशन प्रेयर। ओह सॉरी बोलिए आप बोलिए सॉरी थैंक यू हिंदी बोलो जय सच्चिदानंद। हे श्रीरात्मा दादा भगवान आपल्याला गोदक्ष लगे, हे श्रीरात्मा दादा भगवान आप परमानेंट दक्षम कर रही है, हे श्रीरात्मा दादा भगवान आप रियल दक्ष क्रिएटिव है। चिनाई गुजराती हे दादा भगवान, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રેયર છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્चिदानंद। ओके हेल्थ हिंदी चिनाई जय सच्चिदानंद। स्वस्थ शरीर हमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। हे दादा भगवान, मुझे आप इस संबंध में शक्ति आपो। इक्ताचिबा गुजराती हाँ जय सच्चिदानंद। સ્વાસ્થ્ય શરીર આપણને શારીરિક, માનસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, ભૌતિક, ભાવનાત્મક તેમજ આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત બનાવે છે। હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો। वेरी गुड चिनाई स्टडी सच्चिदानंद। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और नित्यता से अज्ञान करने से उत्कृष्ट गुण देगी, अपने लक्ष्य को सफलता और खुशी को प्राप्त करवाएगी। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति आपो। गीताक्षी बाप જય સચ્ચિદાનંદ। અભ્યાસમાં સખત મહેનત, પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતા ઉત્તમ ગુણ આપશે। મારા લક્ષ્ય સફળતા અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવશે। હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો। वेरी गुड सत्साधन चिनाई नित्य और ईमानदारी से सभी संसाधन करने से मेरा मन मजबूत होगा। मेरा चित्त केंद्रित रहकर मेरे 3 लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होगा।
मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा व्यवहार सुधार होगा, दादा भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके जगत कल्याण में निमित्त बनूंगी। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति आपो। साक्षीबा હા, દરરોજ અને નિષ્ઠાપૂર્વક બધા સંસાધન કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે, મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા ત્રણેય સિદ્ધ કરાવશે, મારી શક્તિ વધારશે, મારો વ્યવહાર સુધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવશે, એમના જગત કલ્યાણના કાર્યમાં નિમિત્ત બનાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. ओके वेरी गुड सो कल का होमवर्क क्या था किसको मालूम है ओके साक्षीबा हाँ, कल का होमवर्क ये था कि आज हम पेरेंट्स पे और टीचर के साथ ओबीडियंट रहे थे कि नहीं रहे थे. ओके आप बोलिए हाँ, जय सच्चिदानंद. आज मैं टीचर्स के साथ ओबीडियंट रही थी, लेकिन मम्मी के साथ ओबीडियंट नहीं रही थी, क्योंकि मुझे मम्मी ने बोला था कि तू गुजराती में 1 से 2 चैप्टर की टेस्ट थे, लेकिन मैंने मना किया और 1 ही चैप्टर की टेस्ट थी, क्यों मना किया था क्योंकि मुझे कंटाला आ रहा था वो गुजराती में. कंटाला आया था वो कंटाला कैसे आ सकता है ओके लक्ष्य आज मैं टीचरों के साथ अच्छा रहा था, बस मैं मम्मी के साथ अच्छा इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मम्मी ने एक बार मुझे बोला था कि दूध सर दबा दे, तो मैंने नहीं दबाया था. तो मम्मी का ध्यान नहीं रखते आप मम्मी अच्छी नहीं लगती आप आज मम्मी अच्छी नहीं लगती ओके करिश्मा हाँ, जय सच्चिदानंद. मैंने आज मोनिका दीदी के साथ ओबीडियंट रही थी, नहीं रही. हाँ तो कैसे बन सकता है आप तो सबको परेशान करते हैं खुशी जय सच्चिदानंद. आज मैंने पापा के साथ ओबीडियंस मेंटेन किया था, मम्मी के साथ नहीं किया. पप्पा से क्या हो गया आज पास मम्मी के साथ हुआ था. मम्मी को क्या हो गया था वो भी अच्छा नहीं लगता है दस की जैसा नहीं, तो मम्मी ने कहा मुझे स्कूल से आते ही बहुत भूख लगी थी, पापा ने मुझे पैसे दिए थे कि तुम जाकर कुछ खरीद कर खा लो. मम्मी ने कहा मैं अभी खाना बना रही हूँ, मत खरीदो, तो मैंने जानबूझकर जाकर खरीद के आई. वो पैसा कुछ नहीं दिया पापा ने दिया हाँ. मोनिका हाँ, जय सच्चिदानंद. आज मैंने ओबीडियंस में मम्मी के साथ ओबीडियंट नहीं रही थी. मम्मी ने कहा कि फोन रिपोर्ट लिखकर बाद में रख देना, तो मैंने फोन रिपोर्ट लिख दिया और भेज भी दिया. बाद में मैं थोड़ी देर में फोन में वापस गाना सुनने लग गई, तो मम्मी ने डांटा. और पापा के साथ आज मैं ओबीडियंट नहीं रही थी, क्योंकि पापा ने जब मुझे एक काम दिया था कि ये चीज दुकान लेकर आओ, तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, तो फिर भी मैं गई थी पापा की मदद करने. वो खुशी आप बहुत भूख लगी है तो घर में कुछ होता नहीं है खाने के पहले टेम्पररी होता है. तो पापा का पैसा बिगाड़ने के बात है का और ये कचरा डालने क्या लेके आया क्या कचरा डाला मैंने शेक और खरीद के. बाद में संतोष काका 2 मास में वो बीमार हो जाएगी तो बोला क्या होता है बीमार वो बीमार होता है आप बीमार लोग होते हैं तो सारा दिन खड में रहते हैं नहीं, लेकिन अभी वो शक्ति नहीं मांगी मन मजबूत करने की, तो मन कहाँ मजबूत रहा. वो बातें को 1 मिनट है 12 है खुशी जब आप 2-3 दिन बीमार थे तो सारा दिन 24 आवर्स इन द बेड था
नहीं। तो सत्संग में क्यों नहीं आ सकती है? ओके, अभी बातें करो सत्संग। हाँ, दीपक, संतोष। हाँ खुशी, हाँ। मन का सुन लिया ना? हाँ। मन का सुनोगे तो क्या होगा? बोलो बोलो खुशी बहन। अपने अपने मन मजबूत करने की शक्ति मांगते हैं ना? हाँ। तो फिर अभी मन का ऐसे सुनोगे तो मजबूत होगा कि कमजोर हो जाएगा? कमजोर होगा। मन का सुनने का कहाँ और कहाँ पे नहीं सुनने का वो समझना पड़ेगा ना। हाँ। कहाँ पे मन का सुनने का? जहाँ मन हमें। हाँ, क्या बता रहे मोनिका जी? नहीं नहीं, वो हेल्पलाइन ले सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ, वो हर रोज का काम ये होता है खुशी का कि बाहर से पापा से पैसे मांग के खाने का, और हर रोज खाना खाकर सो जाती है 3 घंटे 2 घंटे, बाद में शाम को 7 o'clock को उठती है, या फिर कभी कभी बहुत लेट हो जाती है। तो मैंने कहा वो हर रोज अपनी मन की बात सुनती है कि सोना है, खाना है, बस। ऐसा खुशी, ये तो पेपर ओपन कर दिया है नहीं? नहीं, मम्मी यहाँ पर है इसलिए नहीं, उन्होंने कहा, इसलिए पता है। पेपर ओपन किया तो अच्छा है कि बुरा है खुशी? अच्छा है। क्यों अच्छा है? अच्छा है। क्यों अच्छा है? मेरी गलती को ओपन किया है। लेकिन आपने नहीं किया ना, हाँ। सिस्टर ने किया ना। हाँ। खुद ओपन करे, खुद गलती को ओपन करे ना तो गलती जाएगी, लेकिन दूसरा कोई गलती आपकी ओपन करे ना तो अंदर से क्या होता है देखो, ये बता दिया। अभी मेरी बारी आने दो, मैं उनकी भी देख के फिर उनकी भी मैं बता दूंगा। और ऐसा होता है। और वो बड़ी दीदी बहुत खराब है। हाँ, ऐसा ऐसा नेगेटिव अंदर चलेगा तो क्या करोगे? अभी मम्मी ने मोनिका जी ने बताया कि मम्मी ने बोला इसलिए मैंने बताया, तो अभी मम्मी की भी गलती देखोगे ना आप? हम्म तो गलती है ना, खुशी क्या करवाती है दूसरे के, अपनी गलती होती है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों की गलती देखना शुरू कर देते हैं, और दूसरों की गलती देखना शुरू करते हैं तो हम कमजोर होते हैं कि मजबूत होते हैं? कमजोर। तो हमें मजबूत बनना है कि कमजोर रहना है? मजबूत बनना है। तो दूसरा कोई बताए उससे हम ही बता दे तो अच्छा नहीं है? अच्छा है। दादा भगवान का मालूम है? दादा भगवान पहले वो है ना, हुक्का आता था, वो मालूम है हुक्का कैसा होता है? नहीं। वो इतना बड़ा है ना, रहता है, और उसमें से फिर पाइप निकलती है, और वहां पे जो ऊपर होता है ना वहां पे तंबाकू वगैरह डाल के, और नीचे जो कुंजा जैसा है ना उसके अंदर पानी भरते हैं, फिर नीचे से जो पाइप निकलती है ना वो ऐसे करके फिर खींचते हैं, तो ऊपर जो कोयला के अंदर तंबाकू डाली होती है तो उसका वो फिल्टर होके मुंह में आता है, उसको हुक्का बोलते हैं। तो दादा भगवान पहले हुक्का पीते थे, फिर छोटा भी आता था इतना इतना, तो नली जैसा होता था और आगर खुला होता था थोड़ा, तो उसके अंदर वो तम्बाकू, कोयला और तम्बाकू डाल के फिर अब आगे पतला जो होता है ना वहां से फिर खींचते थे करके, तो फिर अंदर वो आता था। तो दादा भगवान को किसी ने पूछा, दादा भगवान आप ये पीते हो तो क्या है? तो दादा भगवान ने बताया, क्या मालूम है, ये हमारी नबड़ई है, हमारी कमजोरी है, कभी उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं किया उसका। उनकी वो क्या क्या बताया, ये हमारी कमजोरी है, प्रोटेक्शन नहीं किया। और वो जब भी ये गुटखा पीते थे ना तब अंदर से वो प्रार्थना करते थे कि ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी नबड़ई है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं।
तो अगर गलती होती है ना तो कभी उसको सपोर्ट नहीं करना, तो जाएगी। अगर सपोर्ट किया ना तो उसका प्रोटेक्शन किया ना तो दूसरों की भी गलती दिखाना शुरू कर देगी। और अभी अभी हिताक्षी बा ने क्या बताया, कंटाला आता है, बताया ना खुशी। हाँ तो ये सब बातें होती है ना, ये सब तो खुद की गलती छुपानी होती है या खुद की मनमानी करती है ना, तो कोई भी कुछ भी बताएगा ना तब कंटाला आएगा। कंटाला का मतलब मालूम है क्या? वो कांटे नहीं होते, सूल देखा है? सूल बड़ी बड़ी लंबी लंबी आती है, खेतों में होती है, बावड़ की सूल बोलते हैं, इतनी लंबी लंबी होती है। वो खेत देखा होगा ना, जिसने खेत देखा होगा ना उसको मालूम होगा, ये सूल बोलते हैं उसको, गुजराती में सूल। सूल क्या है? संतोष એટલે संतोष कंटाला। काका ये सब सिटी वाला है, उन लोगों ने खेतर भी नहीं देखा होगा। तो मैं बताता हूँ, वो टूथपेस्ट करते हैं ना इनकी, किसकी, बाबा रामदेव की दंत क्रांति वाली करते हैं, देखा है ऐड देखा है? उसके अंदर बबूल बताते हैं, बबूल डाला हुआ है। वो बबूल का पेड़ आता है ऐसा, उसको बावड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बावड़। उनके कांटे होते हैं ना, वो बड़े बड़े होते हैं। तो जब कंटाला आता है ना तो वो सूल अपने को चुभे ना, वो कांटे, अगर सूल समझ में नहीं आती, सोई तो समझ में आती है ना? हाँ। अगर इतनी पूरे बिस्तर पर सोई ऐसे खड़ी खड़ी रखी और उसके ऊपर सो जाओगे तो क्या होगा? चुभेगी ना। कैसी चुभेगी? तो कंटाला का मतलब ये है कि सूल की तरह में चुभता रहेगा, कहीं पर चैन से बैठने नहीं देगा। क्यों? कंटाला आने का कारण क्या होता है मालूम है? हिताक्षी बा को पूछो ना। हाँ हिताक्षी बा, कंटाला आने का कारण क्या है मालूम है? नहीं। तो क्या अपने भीतर से अभी आपने प्रार्थना की ना, क्या किया? शुद्धात्मा भगवान, वो तीन सेंटेंस बोले ना, पहला क्या बोले? हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, ખુશી જુદી છે। हाँ, अभी ये जो आप सेंटेंस बोले ना, उसका मतलब क्या है? कि हम अलग है और दादा भगवान अलग है, हमारे अंदर जो शुद्धात्मा अलग तो अभी अंदर जो शुद्धात्मा भगवान है, तो उनका उनमें से जो आनंद आना चाहिए ना, वो आनंद नहीं आया आपको, इसलिए कंटाला आया। इसलिए बाहर जो आप बोलते हो ना, विनाशी बोलते हो ना, तो विनाशी चीजों में से सुख लेने के ढूंढने के लिए निकल पड़े हम, और विनाशी चीज में से सुख नहीं मिला इसलिए कंटाला आ गया, क्योंकि अंदर का सुख आया नहीं। विनाशी चीज का में से सुख लेना है लेकिन वो मिला नहीं, तो क्या होगा? कंटाला आएगा। वो फिर सोई की तरह चुभता रहेगा। जब तक आपको सुख की अनुभूति बाहर से या अंदर से नहीं होगी ना, तब तक वो चुभता रहेगा। तो बाहर से सुख लेना अच्छा है कि अंदर भगवान का सुख मिले तो अच्छा है? अंदर भगवान का सुख मिले वो अच्छा है। तो क्या है, वो कैसे मिलेगा? सत्संग करने से, मम्मी पापा की क्योंकि बात। कभी ऐसा कंटाला आता है ना, तो फिर कविराज का पद गुनगुनाने का अंदर, या तो फिर 9 कलम में बोलने का, या तो फिर ये 3 वाक्य जो है ना वो दोहराने का, तो वो फिर कंटाला चला जाएगा और अपना मन पक्का हो जाएगा, नहीं ये मुझे अब ऐसा ही करना है, तो मन की आप नहीं सुनोगे फिर। बराबर है? मन की सुनते हैं ना तो कंटाला आता है, और अंदर रहे भगवान की सुनेंगे ना तो कंटाला नहीं आएगा। तो अभी किसका सुनना है का वो आपको देखने का? अंदर के भगवान का।
मम्मी आपको बोलेगी हिताक्षी भाई ये करो, तो फिर मन चिल्लाएगा, नहीं अभी नहीं करना है, तो फिर किसकी सुनोगे? अब तो भगवान की सुनेंगे। तो फिर मम्मी की सुनने का। वही भगवान है ना। मम्मी की सुनने का। हाँ। अभी क्या है कि हमें हिताक्षी बा, मोनिका, करिश्मा, खुशी, अभी क्या है, हमें क्या हमारा हमारा कहाँ पे फायदा है कहाँ पे नुकसान है हम जानते नहीं है। जानते हैं? नहीं। नहीं जानते हैं ना? तो फिर आप मम्मी पापा को रोज सुबह में पैर छूते हो ना, हाँ। तो पैर छूने का यानी खत्म हो गया। नहीं। हाँ, तो क्या पैर छूते हैं तो वो पैर छूते समय हमें अंदर रखना है कि अभी मुझे मेरे हिसाब से नहीं चलना है, मम्मी पापा जो बताए उस हिसाब से मुझे चलना है, क्योंकि मुझे सही और गलत की समझ अभी है नहीं, उनको हमसे ज्यादा है, तो वो जो बताएंगे न उस हिसाब से चलेंगे तो हमारा जीवन सही हो जाएगा। तो पैर छूते हैं ना, तभी अंदर रखने का हमें साथ में कि अभी उनके उनके मार्गदर्शन से मुझे चलना है, मुझे मेरी मर्जी से नहीं चलना है। फिर वो बोलेंगे कि अभी टीवी मत देखोगे, तो क्या करने का? नहीं अभी देखो। मोबाइल पे खेलना नहीं है तो क्या करोगे? नहीं खेलोगे। नहीं खेलेंगे। तो क्या अगर खेल भी लो ना, अगर उन्होंने बोला और खेल भी लिया या फिर टीवी देख भी लिया ना, तो अंदर से फिर माफी मांग लेने का कि मम्मी आपने बोला कि नहीं देखना चाहिए लेकिन ये मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करो, उसका प्रोटेक्शन नहीं करने का। बराबर है? अगर देख भी लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके सपोर्ट में रहोगे ना तो और गिरोगे, उसके सपोर्ट में नहीं रहने का। ठीक है? तो संतो काका ये दक्ष को मम्मी को हेल्प नहीं करने का था आज। हाँ दक्ष, हाँ। उनका जवाब आ गया, लेकिन इसके अंदर आ गया ना जवाब दक्ष। हाँ, मैं मम्मी, अपने मन की नहीं सुनूंगा। हाँ, मम्मी पापा की सुनने का, तो मन अपने आप ठीक हो सही हो जाएगा। हाँ। हाँ। और आपने मदद नहीं की मम्मी को, तो मम्मी को तो सुख मिला होगा ना, आनंद हो गया होगा ना, नहीं, कि दुख हुआ? दुख हुआ। हाँ, तो हम दुख के निमित्त बने ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अभी आपने क्या प्रार्थना में बोला कि मुझे दादा भगवान जैसा बनना है, बोला ना? हाँ। हाँ, तो फिर कैसे बनोगे आप? अगर मम्मी पापा को ही आप हेल्प नहीं कर सकते हो तो दूसरे को कहाँ से हेल्प कर पाओगे? हाँ। तो ये ध्यान रखने का। हाँ, और अपनी गलती कभी भी गलती हो न तो उसका प्रोटेक्शन नहीं करने का, उसका डिफेंस नहीं करने का। हाँ, और कोई भी गलती हो ना, स्कूल में करके आए या बाहर फ्रेंड के साथ गए, कुछ भी गलती की हो ना, तो मम्मी को बता देने का, ताकि क्या होगा, तो वो गलती दोहराओगे नहीं कभी आप, और जितनी छुपाओगे ना उतनी दोहराते जाओगे। बराबर खुशी? हाँ। मोनिका? हाँ। हाँ, इतना ध्यान रखने का। अगर कोई भी कैसी भी गलती हो जाए, घर से बाहर निकलते हैं ना, अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो कभी कभी गलती हो जाती है ना, जानबूझकर नहीं करते, और अनजाने से भी कभी हो जाती है ना गलती। लेकिन कभी गलती का प्रोटेक्शन नहीं करने का, और जो भी है ना वो शेयर कर देने का मम्मी के साथ, ताकि जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी फिर? मम्मी की जिम्मेदारी हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अभी वो गलती से कैसे निकालना है वो मम्मी जाने। ठीक है? कभी कोई बात छुपाने का नहीं मम्मी से। तो हम कभी है ना खड्डे में नहीं गिरेंगे।
लेकिन जिस दिन छुपाया ना उस दिन से खड्डे में गिरना शुरू हो जाएगा। वो क्या चीज होता है खड्डे में गिरने का? वो क्या चीज होता है? इसको मालूम है मोनिका? हाँ, बड़ी अगर हम कुछ भी चीज मम्मी पापा से छुपाते हैं तो हम हर से फंस जाते हैं। और मोनिका वो बाहर जो फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो गलती कहाँ से शुरू होती है मालूम है? नहीं, नहीं मालूम? मेरे से कोई आपको है ना फ्री के अंदर फ्री का कुछ भी देते हैं ना और हाँ। मुफ्त देने का सपोर्ट करते हैं ना, वहां से गलती की शुरुआत हो जाती है। किस चीज से? आई बात समझ में नहीं आया? किस चीज से क्या? देखो आपको आप पढ़ाई में अच्छे हो, बराबर है, और आपको मुझे डाउन करना है तो कैसे करूंगा? नेगेटिव बोल के। आपको मुझे गलत रास्ते पर ले जाना है पढ़ाई की जगह, तो कैसे करूंगा मैं? हाँ, तो आपको प्रलोभन दूंगा ना मैं कुछ ना कुछ। चलो मैं आज यहाँ घुमाने ले जाता हूँ, चलो मैं आज ये खिलाता हूँ, चलो आज मैं अपने पिक्चर देखने जाते हैं, वो सब करते हैं ना, उसको प्रलोभन। वो फ्री आपने पैसा खर्चा नहीं किया, आपको वो फ्री में घुमाने ले गए, फ्री में खिलाने ले गए। तो ये जो फ्री वाला जो प्रलोभन होता है ना, वो हमें गलतियां करवाना शुरू कर देता है। फिर वो कहाँ तक ले जाता है मालूम है? नहीं। आपने 5 महाव्रत सुने? 5 महाव्रत? नहीं। पहला महाव्रत है अहिंसा। कौन सा? अहिंसा। फिर दूसरा है सत्य। सत्य। फिर तीसरा है अचौर्य। फिर चौथा है ब्रह्मचर्य। चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। तो ये फ्री का प्रलोभन है ना, ये सभी महाव्रत को तोड़ देता है। देखो एक क्वेश्चन आता है कि आप रास्ता में जाते बच्चे लोग को क्वेश्चन है, कोई फ्री आपको चॉकलेट देगा तो आप लेगा? नहीं। क्यों? कोई भी अनजान पर्सन से चॉकलेट नहीं लेना चाहिए, या भी वो कोई भी मुफ्त की चीजें दे तो भी। अनजान पर्सन हो या जाना हुआ पर्सन हो, बहुत ध्यान रखने का, मम्मी को पूछ के ही आगे बढ़ने का। अभी जो पहचान वाले होते हैं ना, फिर भी मम्मी को पूछ के आगे बढ़ने का, मम्मी ये देना चाहते हैं, अगर बाय चांस आपको लेना पड़ा तो घर लेके आ जाने का और मम्मी को बताने का, मम्मी इन्होंने ये दिया, क्या करूं मैं? बराबर? That is very important, ना? ये फ्री चीज है ना, वो ध्यान में रखना। Nothing free. Nothing free. और दूसरा बताया दादा भगवान ने, दूसरा में फ्री में क्या मिलता है मालूम है? नेचर हमें देती है, नेचर हमें देती है हवा, पानी और अन्न। हवा टोटली फ्री, नो कॉस्ट। पानी भी नो कॉस्ट मिलता है, लेकिन अभी क्या है, वो मिनरल बोतल की और आरओ की हमें आदत पड़ गई है, तो थोड़ा सा पैसा दे के खरीदना पड़ता है। और तीसरा है अनाज, वो भी किसान उगाता है तो उसको पैसा दे के हमें खरीद कर खाना पड़ता है। तो ये 3 चीज ऐसी है तो कि ये नेचर के आधार पर हमें मिलती है, तो उसका वेस्ट नहीं करना कभी। और संतोष काका, पापा पैसा दे तो बाहर जाके खाने का अच्छी तरह से।
पापा पैसा देते हैं ना, तो हमें ना, मैं साउथ अफ्रीका गए थे, तो वहां पे एक महात्मा के घर गए थे। तो हम जैसे गए ना, तो वहां पे 6 दिन रुकने का था, तो 6 दिन रुके और फिर वहां से हमें नाइजीरिया जाना था। तो वो क्या लेके आए खबर, लड़का और लड़की दोनों था उनका, तो वो क्या लेके आए मालूम है? उनका गुल्लक लेके आए और गुल्लक तोड़ के हमें दे दिया पैसा। वो उनको पूछा ये कहाँ से लाए, तो कि ये पापा हमको यूज करने के लिए देते हैं ना, वो हम पर खर्चा नहीं करते, ये हम दादा भगवान के लिए इकट्ठा करते हैं। नहीं नहीं संतोष दादा, हमको तो पानी पूरी का पैसा मांगता है, हमको तो सैंडविच का पैसा मांगता है, दादा के लिए नहीं करने का है कुछ। और वो कितने छोटे थे मालूम है? ये करिश्मा जैसे थे, करिश्मा जितने थे छोटे। बोलो, आप तो उनसे बड़े हो ना खुशी? हाँ, करिश्मा से बड़े हो ना? बोलो, वो इतने छोटे थे तो भी वो उन्होंने क्या बताया कि पूरे साल में हमें जो भी पापा खर्च करने के लिए देते हैं ना, वो हम पे खर्च नहीं करते, दादा भगवान के लिए इकट्ठा करते हैं। और जब भी कोई भी आपतो पुत्र जाते हैं ना, वो गुल्लक उनको दे देते हैं। बोलो, अभी हम प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं ना, तो फिर दादा भगवान के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या क्या करोगे अब? पापा जो देंगे मैं उसे सेव करूंगी, वेस्ट नहीं करूंगी। और भूख लगा होता, वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना है। एकदम भूख लगी तो घर का खाना खाऊंगी। तो घर में फ्रूट नहीं होते? घर में तो कुछ तो होता है। हाँ, फ्रूट नहीं होते हैं घर में? सब होते हैं। हाँ, तो भाई दादा भगवान आपतो पुत्र को बताते थे, क्या मालूम है कि आपको कभी भी बाहर जाना है, कहीं पर भी जाते हो ना, तो पहला ऑप्शन क्या बताया बाहर खाने का? फ्रूट। पहला ऑप्शन फ्रूट बताया कि अगर कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो फ्रूट लाके खा लेने का। पहला ऑप्शन फ्रूट दिया, ऐसा वैसा बाहर कुछ मत खाना, नहीं तो आपकी सेहत बिगड़ेगी, आपके विचार बिगड़ेंगे। हमने विधि करके आपको, आपके अंदर जो 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 शुद्धि की है ना, वो बाहर का खाएंगे ना, तो वो शुद्धि बिगड़ जाएगी वापस से, फिर वापस से हमें विधि करनी पड़ेगी। तो अभी मालूम पड़ा, ये साइंस मालूम पड़ा। हाँ, ये सब प्रेयर करते हैं, वो करते हैं, उसका फायदा की कब नहीं होगा बाद में, राइट संतोष काका? हाँ, उसके पीछे का कारण भी दादा भगवान ने बताया कि अभी जो भी आप बाहर, जो भी आप रास्ते से खाने के लिए जाते हो, तो वो कितनी मेहनत करते हैं ना। हाँ। अभी वो मेहनत करते हैं, नौकरी करते, ये करते, तो उनके अंदर विचार कौन से चलते होंगे? अच्छे वाले होंगे कि नहीं अच्छे वाले होंगे? नहीं अच्छे वाले। तो अभी उनके हाथ से उनका बनाया वो भाव वाला आप खाओगे, तो वो आपके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर आप बोलते हो कंटाला आता है, मम्मी की नहीं सुनने का होता है, मम्मी बुलाए तो नहीं जाने का होता है, तो वो कहाँ से आपके अंदर घुसा मालूम पड़ा? हाँ। आपके अंदर वो कमजोरी थी नहीं, लेकिन ये बाहर का खाने से, दूसरे के पास से लेने से ये कमजोरियां घुस गई। वो समझने का, मम्मी पापा ने तो आपके अंदर कमजोरियां नहीं डाली ना, नहीं। तो ये कहाँ से आती है? कभी ढूंढा नहीं ये कमजोरी कहाँ से आ गई हमारे में? नहीं पर संतोष काका, ये करिश्मा तो बोलते हैं मम्मी एंड पापा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, ऐसा? राइट करिश्मा?
नहीं नहीं, करिश्मा तो गुड गर्ल है ना? करिश्मा चलो क्या बोलेंगे आप? करिश्मा तो एकदम गुड गर्ल है, नहीं करिश्मा? ये सब बोलो। खाली खाली कहते हैं, नहीं? बोलो क्या बोलेंगे? ओके इताक्षी भाई आप बोलो क्या बोलेंगे आप? नहीं, I am always responsible for me. क्या बात है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो? हाँ, मम्मी नहीं है? नहीं पापा भी नहीं है? नहीं, क्या बात करते हो? तो फिर कंटाला क्यों आता है? रिस्पॉन्सिबल आप हो तो? हाँ वो तब गुजराती में मन नहीं लग रहा था इसलिए कंटाला आया था. બરાબર है, મન નથી લાગતું એટલે કંટાળો આવે છે, વાત બરાબર છે. પણ હમણાં તમે શું કીધું? ઓલ એન્ડ સોલ રિસ્પોન્સિબલ કોણ છે? ऐसा माई सेल्फ. तो फिर नहीं आना चाहिए ना? नहीं. तो क्या Very मन good. की बाहर का खाना खाने से क्या होता है कि हमारा आचार और विचार दोनों बिगड़ जाते हैं? क्या आचार यानी क्या? आचार यानी क्या? आचार यानी बिहेवियर, आचार. और विचार यानी मन के अंदर जो थॉट्स आते हैं ना, वो भी बिगड़ जाते हैं, वो भी सभी के प्रति नेगेटिव होने लगते हैं. करिश्मा दीदी अच्छी नहीं लगती ना? नहीं हाँ, दीदी अच्छी नहीं लगती ना? ये लगती है अच्छी? मोनिका दीदी अच्छी नहीं लगती. हाँ, तो ये विचार आपके अंदर कहाँ से घुसा? वो अच्छी नहीं लगती. पता नहीं. हाँ, तो वो ढूंढना पड़ेगा ना. वो वो ढूंढ ढूंढ के लिख लेना सब, कि हमारे विचार ऐसे क्यों आ रहे हैं, हमने ऐसी ऐसी क्या अभी प्रेजेंट में गलतियां कर रहे हैं, तो इससे हमारा मन बिगड़ रहा है. वो होमवर्क में रखना, ठीक है? ठीक है तो चलो वेरी गुड. हाँ ये सत्संग बहुत बढ़िया हुआ. तो थोड़ा टाइम मिले तो सुनना. और जो इताक्षी बा कंटाला बोरिंग आता है ये सुनने का. ओके हाँ जय सच्चिदानंद. जय 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 श्री राम. सच्चिदानंद.